The word internal itself means the energy content within the system. It is an extensive property, which means it is independent of pressure, volume, temperature, and number of moles, and it is usually denoted by U. For an example, a human body is a system, and all the processes going on in our body requires energy. Similarly, in a system, it contains various types of energy, and we cannot calculate the total energy of a system. Therefore, we can calculate delta U, which is U2 minus U1, which is final energy minus initial energy. Internal energy can be uh, explained as a summation of all energies. We can find energy in system in two types, that is heat and work. Work is applied by the surrounding on the system, therefore we use positive sign, and similarly heat is applied on the system by the surrounding, therefore we use positive sign, and it is denoted by delta U, which is final minus initial. मॅम त्या पोर्शन मध्ये तेवढंच आहे. And it is an extensive property, which means it is independent of pressure, temperature, and number of moles. And we cannot find the total energy of a system. Therefore, we find the change in energy by calculating its final and initial energy. In any system, like we can take a system of human body, various processes like digestion, respiration takes place. Therefore, we can find the total energy of the system by calculating the change in energy. For example, if we have our meal, then we cannot find the total energy, but we can find the change in energy after having meal. Similarly happens with the system. In terms of heat transfer, when energy is added and when energy is removed. I didn't get it. In terms of heat transfer, when energy is added in the system and when energy is removed from the system. What can you say? मतलब heat अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी. So write down that when heat is transferred to the system, internal energy is added to the system, right? So heat transfer, energy added, right? And then heat removed means जब हम कूल करते हैं सिस्टम को, कूलिंग करते हैं तो एनर्जी दोस्तों removed, because all these are part functions, right? Yes. Heat. So actually heat is part function, and that is directly correlated with internal energy, right? Yes. तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर ली है, दैट इज इंटरनल एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय यू. ओके,
ये सबको समझना है। और थर्मोडायनामिक्स के जो सारे फंक्शंस है, ओके, जो सारे टर्म्स है, उसमें से ये इम्पोर्टेंट टर्म है जिसका यूज आगे होने वाला है। तो इन शॉर्ट, टू समराइज, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, यू कैन से कि कोई भी सिस्टम है आपके पास, रिएक्टिंग सिस्टम है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है खुद की, दैट इज इंटरनल एनर्जी, राइट। तो वो उसके पास होती ही है, हाँ, नो डाउट, इट कैन बी लार्जर, हम उसको लार्ज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, व्हेन वी ऐड हीट और रिमूव हीट। तो एक्चुअली एनर्जी जो होती है ना, तो ये एक समझ लो कि एनर्जी एक्चुअली क्या होती है। तो एनर्जी आप दो टर्म्स में समझ सकते हो, राइट। वन इज वर्क, ओके, एंड अनदर इज हीट, राइट। तो इन दोनों को कंप्राइज करके या इन दोनों का जो चेंज है ये ऑब्जर्व करके आप बोल सकते हो कि वो हीट में चेंज हुआ है। बॉडी की एनर्जी मतलब क्या होता है? ऐसा एक कोई सब्सटेंस होता है क्या एनर्जी मतलब? नहीं ना, कि मुझ में आज बहुत एनर्जी है, मतलब क्या कुछ टैबलेट होती है क्या एनर्जी नाम की? नहीं ना, एनर्जी ये टोटल इसेंस होता है बॉडी का, राइट। तो which is related to your food intake, right, which is related to your oxygen intake, which is related to your health, okay, and also which is related to your psychology. तो ये सारा कंबाइन करके आपकी बॉडी की एनर्जी होती है, राइट। तो सेम इन द वे ऑफ थर्मोडायनामिकल सिस्टम, कि यह सिस्टम में अपनी खुद की हीट कितनी है, ओके, उसकी हीट कितनी है, उसका वर्क परफॉर्मेंस कितना है, ये सारा कंबाइन करके उसकी एनर्जी कितनी है ये हम डिसाइड करते हैं, ओके। एंड as it is extensive property, okay, which is naturally present in that system, this energy is called as internal energy, okay. No external force is required to mention that kind of energy. समझ में आ गया इतना? ओके, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, छोटी सी टर्म है, एकदम इजी है। आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं उसके, ओके, कि कैसे एनर्जी में चेंज होता है वो आपको दिया है। तो यहाँ पे दो टर्म्स है कि U2 एंड U1, इनिशियल, फाइनल एंड इनिशियल। तो फाइनल कब कहेंगे आप? कि आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क जो एनर्जी बचती है, दैट इज योर फाइनल एनर्जी। एंड इनिशियली जो इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट है, दैट इज योर U1, ओके, इनिशियल एनर्जी, ओके। तो स्मॉल स्मॉल टर्म्स है पर ध्यान में रखो इसको, राइट। सो हीट ट्रांसफर मतलब डायरेक्टली एडिशन ऑफ एनर्जी, ये दिमाग में फिक्स करो। और ये जो है ना, वर्क एंड हीट को कंप्राइज करके, दोनों को कंबाइन करके आपको एनर्जी अकाउंट पता चलता है किसी भी सिस्टम का, राइट। चलो, तो नाउ एक्चुअली जिसके लिए थर्मोडायनामिक्स जाना जाता है, एंड दैट पार्ट विच इज द इसेंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, chemical thermodynamics or any other kind of thermodynamics, that is laws of thermodynamics, okay. So actually Zeroth law of thermodynamics भी होता है, पर वो थोड़ा सा उसके लिए आपको आपका इमेजिनेशन और अंडरस्टैंडिंग वाइड करना पड़ेगा, इसलिए उसको हम नहीं लेंगे। पर जब हम समरी लेंगे ना सारे लॉज की, तब मैं आपको जीरोथ लॉ के बारे में थोड़ा सा बता दूंगी, ओके। एक स्यूडो थर्मोडायनामिक्स भी होता है, पर वो जाने दो, ये थोड़ा सा आगे का सारा पार्ट है, राइट। पर यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर हो सके तो आप उसका एक कंपैरेटिव अकाउंट बना लो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, ओके। तो वो सारे लॉ, उनके स्टेटमेंट्स आपको ध्यान में रहने चाहिए, राइट। सो नाउ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओके। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट लॉ आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके कुछ स्टेटमेंट्स है, ओके। तो इट इज अबाउट एक अगर सिंपली उसको अगर आपको टाइटल देना है, फर्स्ट लॉ को अगर आपको टाइटल देना है, फॉर एग्जांपल, ओके, तो सिंपली आप उसको क्या बोल सकते हो फर्स्ट लॉ को? दैट इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। That is nothing but the law of conservation of energy. ये इसका टाइटल है, बस
This law tells us about the conservation of energy. Okay. So हमारा जो फेमस स्टेटमेंट है, राइट, जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सुना है ना सब लोगों ने, तो ये इस लॉ का स्टेटमेंट है, राइट। तो ये लॉ क्या कहता है, इसका फाइनल मोटिव क्या है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। ओके, सो नाउ सी, you have one system, okay, this is one reacting system, okay, इसकी अपनी खुद की एनर्जी है, ओके, इसकी अपनी खुद की एनर्जी है। यहाँ पे हीट ट्रांसफर चल रहा है, ओके, वर्क ट्रांसफर मतलब वर्क कम ज्यादा हो रहा है, ओके, दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टेप्स, वन इज इनिशियल फेज, ओके, मतलब S1 इनिशियल जो कुछ भी इसका अकाउंट था वो, और ये है फाइनल, ओके। तो यहाँ पे इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि पहले जो टोटल यहाँ पे जो सिस्टम थी, ओके, पहले फेज में जो सिस्टम थी एंड ये टोटल सराउंडिंग है उसका, ओके, ये सारा सराउंडिंग है इसमें। तो ये जो सिस्टम है अपनी, तो ये सिस्टम और ये सराउंडिंग, इसमें हीट ट्रांसफर चल रहा है, ओके, टेम्परेचर अल्टर हो रहा है, सब कुछ उसमें चेंजेस हो रहे हैं, पर ऑल टुगेदर व्हेन दिस सिस्टम इज ट्रैवलिंग और डिपिक्टिंग द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट थ्रूआउट द प्रोसेस, ओके, थ्रूआउट दिस प्रोसेस टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, टेम्पररी चेंज होगा, ओके, बट आपकी रिएक्शन जब फिनिश होगी ना, तब तक ये सारा जो एनर्जी चेंज होगा ना, ये पहले जैसा ही होगा, ओके। मतलब टोटल, इसका फाइनल स्टेटमेंट क्या है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। और आपका वो फेमस स्टेटमेंट याद ध्यान में रखना कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके, सिर्फ उसका फेज चेंज होता है और फाइनली वो कांस्टेंट होती है। समझ में आ गया? ओके, तो उसके कुछ स्टेटमेंट्स है, देखो फर्स्ट लॉ के, तो उसको समझ लो, इजी स्टेटमेंट है। फर्स्ट लॉ इज वेरी इजी कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो यूनिवर्स कैसे बनता है, ओके, क्या है वो स्टेटमेंट, यूनिवर्स कैसे बनता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ऐसे आपका यूनिवर्स बनता है कि नहीं। तो अगर इन दोनों की एनर्जी, इन दोनों की जो एनर्जी है, ये थ्रू आउट द रिएक्शन कॉमन रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, तो यूनिवर्स की जो एनर्जी है टोटल, वो भी कांस्टेंट ही रहेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। देन कंसिडर करो, ये जो आपकी सिस्टम है ये आइसोलेटेड है, ओके, फॉर एग्जाम्पल ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब ध्यान में है ना कि नो वर्क ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर, कुछ भी नहीं, मैटर ट्रांसफर, कुछ ट्रांसफर नहीं होता इसमें, यूनिवर्स में, सराउंडिंग में, सॉरी। तो इसकी भी टोटल इंटरनल एनर्जी जो है ये थ्रू आउट दिस रिएक्शन कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। समझ रहे हैं सब लोग? ओके, नाउ थर्ड स्टेटमेंट, बस ये तो आपका फेमस, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बस ये थर्ड स्टेटमेंट हो गया। ओनली थ्री स्टेटमेंट्स आर देयर। वन इज टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स, सेकंड इज टॉकिंग अबाउट आइसोलेटेड एनर्जी, आइसोलेटेड सिस्टम, and third statement is talking about this conservation of energy, right? So क्यों इस लॉ को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोला गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी?
क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बस ये पहले एनर्जी प्रेजेंट थी अब गायब हो गई, ऐसा नहीं है, वो पहले से है, सिर्फ उसका ट्रांसफर हो रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाई टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ओके, कंजर्वेशन का मतलब जानते हो ना कि वो गायब नहीं होती, माइनस नहीं होती, या कहीं से ऐड भी नहीं होती, जो पहले से है वही वैसे की वैसे ही चलती है होती है। कंजर्वेशन के लिए एक आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस क्लास, इस क्लास में 20 लोग हैं। कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। ओके, अब क्या हो गया कि कुछ इंटरेक्शन चल रहा है हमारा, और इस क्लास में से 2 लोग बाहर चले गए, पर एट द सेम टाइम 2 लोग अंदर भी आ गए, 20 नंबर कंजर्व हो गया। हाँ, फिर 4 लोग बाहर गए, 4 लोग अंदर आए। ओके, नहीं तो ये 10 लोग यहाँ पे खड़े थे। ओके, इसमें से 2 लोग उस डायरेक्शन में चले गए, पर चेंज हो गया क्या कुछ? स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कुछ चेंज हो गया? नहीं, दैट इज कंजर्वेशन। ओके, कि एनर्जी कंजर्व रहती ही है। ओके, उसका अगर आप जूल्स में देखने जाए तो उसका जो टोटल नंबर है वो चेंज नहीं होता, वो कंजर्व्ड ही रहता है। okay, and this is applicable to a small cell, okay, and also to the universe, also to the solar system। सबकी एक एनर्जी होती है और वो कंजर्व रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं हुई। ओके, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, पटकन खाली बघा, एका मिनिटात वाचून घ्या, काही प्रॉब्लेम असेल तर विचार। ओके, सो नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज आवर सिस्टम। ओके, अब हमें क्या करना है ना, एक मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म करना है। हर एक लॉ का एक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा कि नहीं हमें? तो ये हमारा सिस्टम है। अब हमें स्टडी करना है कि इसका एनर्जी अकाउंट क्या है, राइट। अब अभी अभी हमने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, कि एनर्जी कैसे पता चलती है? विथ रिस्पेक्ट टू हीट ट्रांसफर एंड वर्क डन, राइट। तो ये एक समझ लो, एक ऐसा हम स्टेटमेंट बनाते हैं यहाँ पे कि जो एनर्जी अकाउंट है आपका, ये आपको कैसे समझ में आता है? एनर्जी अकाउंट इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी अकाउंट इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर प्लस वर्क डन। ओके, तो ऐसे आपको एनर्जी समझ में आती है। ओके, तो अगर आपके पास एक सिस्टम है, इसके पास कितनी एनर्जी है ये आपको समझना है, राइट। ये आपको अगर समझना है तो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? अभी अभी हमने स्टडी किया, ओके, डेल्टा यू बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेट्स थी, एक इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। तो उसके बीच में एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी में कितना चेंज हुआ ये हमें स्टडी करना है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इफ Q इज द हीट, ओके, W इज द वर्क, ओके, एंड हमें इंटरनल एनर्जी स्टडी करनी है। एनर्जी का मतलब पूरा अकाउंट देखना है। तो वी कैन मेक अ इक्वेशन। ओके, एनर्जी हम कैसे स्टडी कर सकते हैं? तो इंटरनल एनर्जी ये कैसे पता चलेगी कि Q प्लस W, हीट ट्रांसफर प्लस वर्क डन। अब ये हमें 2 इसमें करना है, इनिशियली कितना था और फाइनली कितना था। दैट्स व्हाई वी विल स्टडी द चेंज। ठीक है, दैट्स व्हाई वी विल स्टडी द चेंज। अब ये हो गया नॉर्मली, राइट, ये हो गया नॉर्मली। अब देखो, आप यहाँ पे डेल्टा और डेल्टा लगा सकते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ओके, क्योंकि हीट ट्रांसफर भी पहले कुछ तो उसकी अपनी हीट थी और बाद में उसका अपना एक टोटल हीट में ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे भी आप डेल्टा लगा सकते हो इफ कंडीशंस आर अप्रोप्रिएट। एंड फॉर एग्जांपल, आपका ये जैसे हमने कल देखा था कि आपके पास एक पूरा ऐसा प्रोसेस है, पूरा एक रिएक्शन है, ओके, और इसमें सिंगल एक मतलब 1 सेकेंड में कितना चेंज होता है ये आपको स्टडी करना है। तो फिर इन दैट केस आप क्या कर सकते हो? यस, राइट। तो यहाँ पे आप डेरिवेटिव लगा सकते हैं, राइट। तो और कैसे लिखते हैं? डेरिवेटिव लगाने के पहले कैसे लिखा जाता है कि फॉर इनफाइनाइटसिमल स्मॉल चेंज। स्मॉल लिखने की जरूरत नहीं है, इनफाइनाइटसिमल मतलब ही स्मॉल। ओके,
कि फॉर इनफाइनेटिसिमल चेंज डेरिवेटिव ऑफ u इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ q प्लस डेरिवेटिव ऑफ w, और इसका बाद में जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो टोटल सिस्टम का जो एनर्जी अकाउंट है, सिस्टम का जो टोटल एनर्जी अकाउंट है, ये आपको समझ में आ जाता है, राइट। तो ये रहा, ये आपका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हुआ ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओके। तो यहाँ पे लॉ का अगर आप एक कंपैरेटिव अकाउंट बना रहे हो सब लॉ का, तो उसमें क्या क्या आना चाहिए? सबसे पहले लॉ, उसका अगर ऐसा कोई नेम आता है तो नेम, राइट, देन उसका स्टेटमेंट लॉ का जो भी है वो, उसके जो पोस्टुलेट्स है लॉ के वो, और बाद में उसका एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। इतना पार्ट इसमें आना चाहिए अगर आप कंपैरेटिव बना रहे हो, और एक्चुअली बनाना भी चाहिए, राइट। So now we have different processes, okay, we have different systems, and for in those systems how the first law is applicable, that we are going to study, okay. So now we have first process, that is isothermal process, okay. अब ये जो पहले हमने जो सीखा था ना वो सब कुछ अप्लाई होने वाला है यहाँ पे। So we have different processes, okay. So now here first is isothermal process. हाँ, क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस? क्या है जिसमें, हाँ बोलो, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ओके। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ओके, देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर थ्रू आउट द रिएक्शन, ओके। समझ में आ गया? तो अगर टेम्परेचर में चेंज है नहीं तो क्या बोलेंगे आप? टेम्परेचर में चेंज नहीं है, दैट्स व्हाई डेल्टा U इज इक्वल टू 0। एक्चुअली डेल्टा U बाद में करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं होती, ओके। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका जो डेल्टा U है वो 0 आएगा, ओके। जो डेल्टा U है वो 0 आएगा, व्हाई? बिकॉज इंटरनल energy is constant, okay, because internal energy is constant, that's why delta U is equal to 0, that's why यहाँ पे ये कैसा आएगा, ये जो इक्वेशन है ये कैसे आएगी? 0 is equal to Q plus W, ऐसा आएगा। 0 is equal to Q plus W, दैट्स वाई यहाँ पे वर्क डन जो है वो क्या होगा? कैसे कर सकते हैं आप? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस Q, ओके। तो यहाँ पे कितनी जो एनर्जी, कितनी जो आपकी हीट है वो एक्सपेल हो रही है, उसका जो निगेटिव वैल्यू होगा ना वो आपका वर्क डन होगा, वर्क की वैल्यू होगी, ओके, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसका स्टेटमेंट देखो, ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो आप? बुक में बहुत अच्छा दिया है, ये देखो कि क्या बोला इन लोगों ने, हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, ओके, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज एंटायरली यूज्ड फॉर डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग। जो कुछ भी एनर्जी या हीट बची है थोड़ी फार, वो आपकी सिस्टम एब्सॉर्ब करती है। ये माइनस साइन से पता चलता है। व्हाई माइनस साइन? बिकॉज हीट इज एब्सॉर्ब्ड, okay, and that heat is entirely completely used for the work done to the surrounding, right? So minus sign क्या करती है कि ये जो work done है वो कैसा है? work done is from the system to surrounding, ओके, ये हमें यहाँ से पता चलता है।
समझा यहाँ तक? आइसोथर्मल सिस्टम में क्या होता है? व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट, राइट? Now, second process is adiabatic process. What is adiabatic process? हाँ बोलो. तो यहाँ पे क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में? प्रेशर कांस्टेंट रहता है, राइट? प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम कांस्टेंट रहता है. अब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे प्रेशर एंड हीट ट्रांसफर का रिलेशन होता है. तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि हीट ट्रांसफर नहीं होता. ओके, यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं होता, राइट? अब हीट ट्रांसफर नहीं होता तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन कैसे बन जाती है फिर. इसमें आप 0 पुट करते हो तो क्या होता है? पुट करो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू 0 प्लस डब्ल्यू, ऐसा आया. तो देन यहाँ पे इसको रीअरेंज करके चलो लिखते हैं हम लोग. डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 प्लस डब्ल्यू, मतलब डेल्टा यू इज एक्चुअली वर्क डन. ऐसा है, पर इसको आपको थोड़ा सा रीअरेंज करके क्या करना है ना, इसको यहाँ पे लाना है, इसको यहाँ पे लाना है और माइनस साइन पुट करनी है. दोनों तरफ आपको क्या करना है? माइनस साइन पुट करनी है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सारा वर्क चल रहा है, ये इसका डायरेक्शन कैसा है वो समझ लो. इसकी ऑर्डर कैसी है? टू द सिस्टम फ्रॉम दी टू द सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टम, ऐसी है. ओके, so that's why delta u is equal to minus w. तो इसका स्टेटमेंट क्या है? देखो कि an increase in internal energy of the system is the work done on it. यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है. ओके, इन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट. इन एडियाबैटिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी is increased. And why internal energy is increased? Because of the work done, right? Because of the work done. और अगर ये इंटरनल एनर्जी जो है ये पहले जो बढ़ी है ये हमने यूज कर दी फॉर द वर्क बाद में, तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो बाद में डिक्रीज हो जाएगी. जब उसका एक्सपेंस होता है, जब ये बढ़ी हुई इंटरनल एनर्जी जो है ये अपॉन एक्सपेंस फॉर वर्क, और इसका ओरिएंटेशन कैसा है फिर? सिस्टम टू सराउंडिंग द total internal energy is then decreased. Okay, the total internal energy is then decreased. कब? बाद में. Okay, आ गया समझ में? तो चलो ये 2 प्रोसेसेस पहले पढ़ो, फिर बाद में और 2 प्रोसेसेस देखेंगे. पैराग्राफ पूरा वो पढ़ो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो. ओके,
So now third system we have, that is isochoric process. ओके अब यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस में ये समझने के लिए उन्होंने क्या किया है, दैट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम चेंज, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, आपका जो इक्वेशन था जो हमने डिराइव किया था उस दिन, राइट, ऐसा था ना। तो इसको आपके टोटल एनर्जी का जो ये है इक्वेशन है, उसमें हमें उसको ऐड करना है। क्या है वो, ऐसा है ना। ओके तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ ये जो W है, वर्क है, उसके जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट करना है। करो। तो यहाँ पे ये क्लोज कंटेनर में चल रहा है सब कुछ। ओके तो यहाँ पे ये जो डेल्टा V है, वॉल्यूम चेंज है, ये नहीं होता, दैट इज कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई इट इज 0, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके वॉल्यूम थ्रू आउट द रिएक्शन कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हियर हाँ, हर एक प्रोसेस में कौन 0 है ये समझ लो। हाँ कि आइसोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा T इज इक्वल टू 0। ओके डेल्टा सिंस डेल्टा T इज इक्वल टू 0, डेल्टा U इज इक्वल टू 0। ये कौन 0 है ये इसमें समझना इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ को इक्वेशन में पुट करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ओके तो यहाँ पे डेल्टा V क्या आता है, 0 आता है। तो अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे ना ब्रैकेट मत डाल, ये जो है ना यहाँ पे ब्रैकेट मत डाल, सीधा ऐसा करें। ओके क्योंकि ब्रैकेट अगर डाली ना तो वो जो टर्म है वो 0 हो जाएगी पूरी। ओके क्योंकि वो मल्टीप्लाइड है ना तो वो 0 हो जाएगा, और हमें प्रेशर चाहिए, प्रेशर 0 नहीं हो सकता उसमें। ओके आइसोकोरिक में प्रेशर 0 नहीं होता, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ये नेसेसरी नहीं है। ओके तो ये जो डेल्टा U है, यहाँ इसके लिए सिर्फ क्या बचा अब यहाँ पे कि Q माइनस P एक्सटर्नल, क्या बचा, Q माइनस P एक्सटर्नल। ओके एक मिनट। हाँ डेल्टा V अगर देखो सिस्टम में वेरीफाई कैसे करते हैं वो बताती हूँ, कि वॉल्यूम चेंज जो है वो अगर 0 हो गया, ओके तो जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड था उसका इफेक्ट नहीं रहेगा, राइट। यस डालेंगे ब्रैकेट तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टर्म 0 हो गई तो भी कोई नहीं, सिर्फ ये बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए, हीट ट्रांसफर बचनी चाहिए। ओके आ गया समझ में, आपको समझा क्या क्या गड़बड़ हो गई थी, कि प्रेशर का इफेक्ट है कि नहीं ये हमको समझ नहीं रहा था, पर वो मैथमेटिकली समझ में आ गया, राइट। कि अगर वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं हो रहा है तो एक्सर्टेड प्रेशर कितना हो, क्या करना है ना उसको, हाँ प्रेशर एक्सर्ट करे या ना करे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होने ही नहीं वाला। दैट्स व्हाई ये जो पूरी टर्म है ये वाली, इसका कोई इफेक्ट नहीं है हमारे लिए। ओके सो दैट्स व्हाई यहाँ पे डेल्टा Q जो है, ये डेल्टा U जो है दैट इज इक्वल टू Q, मतलब क्या, हीट ट्रांसफर। तो डायरेक्टली इसका स्टेटमेंट कैसे बना सकते हो आप, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू द हीट ट्रांसफर, बस, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है इसलिए इसको यहाँ पे स्मॉल v लिखा जाता है। ओके एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये समझने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, ये स्मॉल v सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। ओके दोनों स्टेट फंक्शन है यहाँ पे, दोनों भी, एनर्जी भी और हीट भी, पता है आपको। एंड देन
Last process is isobaric process. तो यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है ये जीरो नहीं होता, राइट? यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो जीरो नहीं होगा। एक्चुअली ये जो है ना, ये जो प्रोसेस है ये क्लोज कंटेनर्स के लिए है, और ये जो प्रोसेस है ये ओपन कंटेनर के लिए है। ओके, ऊपर की प्रोसेस क्लोज कंटेनर के लिए है, नीचे की प्रोसेस ओपन कंटेनर्स के लिए है, आइसोकोरिक प्रोसेस। राइट? और इसको डिनोट करने के लिए स्मॉल p सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। इसको डिनोट करने के लिए स्मॉल p लिखा जाता है। ओके, तो ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसको रीअरेंज करो फिर इस हिसाब से। डेल्टा U इज इक्वल टू ये जो Q है ना, इसका जगह पे सिर्फ QP लिखो। ओके, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ओके, अब ये इक्वेशन जो है ये सॉल्व करो फॉर QP। करो, रीअरेंज करो। इस साइड पे QP चाहिए, बाकी का सारा इस साइड में चाहिए। करो रीअरेंज, इसको रीअरेंज करो। ऐसा आया डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें रिलेशन बताती है। So here constant atmospheric pressure is there, exerted नहीं है ना, constant atmospheric pressure। यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये लिख लो एक साइड पे, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करती है। यस, ओपन कंटेनर है इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है। कंसिडर करो ये एक्सर्टेड वाला है, ये क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सील्ड चाहिए पूरा कंटेनर, फिर आप प्रेशर एक्सर्ट करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, वैसे कोई बात नहीं है कि पूरा कंटेनर आपको सील्ड चाहिए। वो जो कंडीशन है ना सील्ड वाली, तो वो वैक्यूम वाले कंटेनर्स में एप्लीकेबल है। हाँ, आपको वैक्यूम का भी रिलेशन लेना है तो फिर आपका कंटेनर सील्ड चाहिए प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए, पर बाकी आपका कंटेनर पूरा सील्ड चाहिए ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे ये इक्वेशन को देख के ये पूरा इसका स्टडी करके एक स्पेशल टर्म यहाँ पे आती है। ओके, जिसका स्टडी हमें करना है वो है एंथैल्पी। ओके, H, एंथैल्पी, कैपिटल H, दैट इज हीट चेंज इंडिकेट करने के लिए ये एंथैल्पी होती है। ओके, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, so it is enthalpy actually। यहाँ से इसको देख के एक ये टर्म आती है जिसको बोलते हैं एंथैल्पी, दैट इज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो इसको अगर मैथमेटिकली बोलना है तो कैसे बोला जाता है एक्चुअली? व्हाट इज एंथैल्पी? दैट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी
सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, बट कौन सा वर्क? दैट इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर एंड वॉल्यूम. ओके, प्रेशर और वॉल्यूम को इक्विवेलेंट जितना वर्क होता है वो वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी का सम मतलब एंथैल्पी होता है. सो H इज इक्वल टू U प्लस PV ऐसा बोला जाता है. ओके, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली, this is actually work, but which is equivalent to pressure volume change. So enthalpy में भी चेंज होता है, राइट? एंथैल्पी भी चेंज हो सकती है ना. एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली, ये क्या होता है? एंथैल्पी मतलब क्या है? दैट इज एक्चुअली एनर्जी. ओके, एनर्जी का मतलब एनर्जी और हीट, इसका कॉम्बिनेशन करके जो चेंज हमें दिखाई देता है ना, उसको ही एंथैल्पी बोलते हैं. ओके, सो दैट इज रिलेटेड टू एनर्जी एंड हीट ट्रांसफर. ओके, और यू तो पता है आपको, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ओके, तो यहाँ पे भी जो आपकी एंथैल्पी है ना, उसमें भी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट हो सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इनिशियल स्टेट्स में ओके, ऐसा हो सकता है, राइट? इनिशियल स्टेट्स एंड फाइनल स्टेट्स. ओके, तो ये क्या हो गया? ये डेल्टा एच हो सकता है, राइट? इसको डेल्टा एच बोल सकते हो आप, और इसको कंबाइन कर सकते हो दोनों को, कि डेल्टा एच क्या होता है एक्चुअली? ये क्या होता है? H2 माइनस H1, राइट? तो H2 के जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट करो, H1 के जगह पे इसको करो. तो डेल्टा H इज इक्वल टू, H2 क्या है? U2 प्लस P2 V2 माइनस H1 के जगह पे इसको डालो, U1 प्लस P1 V1. देखो, इक्वेशंस डिराइव करना ये जब आता है ना, तब आपका पेन शुरू हो जाना चाहिए. ओके, ये सुनने वाली बात है नहीं. ओके, लिखा ये. तो यहाँ पे कॉमन क्या निकाल सकते हो आप? इसको अगर आपको और सॉल्व करना है तो करो, मतलब ब्रैकेट सॉल्व करनी है तो करो. चलो ब्रैकेट सॉल्व करो इसकी. U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 माइनस P1 V1, ऐसा आया क्या? देखो, दो ब्रैकेट सेपरेट करो. तो यहाँ पे ये क्या है? दैट इज नथिंग बट सिंपली डेल्टा U, ओके, प्लस डेल्टा PV. ओके, चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम. अब यहाँ पे ओके, अगर प्रेशर हमने कांस्टेंट पकड़ा, ओके, प्रेशर अगर हमने कांस्टेंट पकड़ा तो P1 और P2 ये दोनों इक्वल हो जाएगा. ओके, so at constant pressure
P1 इज इक्वल टू P2 एंड इन दोनों को मिलके हम सिर्फ P ही लिखेंगे. ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन बिकम्स डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. ये आपका फाइनल इक्वेशन है जो बहुत सारे सम सॉल्व करने के लिए आपके काम में आता है. तो अगर ऐसा हो गया कि आप जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो, ओके, तो प्रेशर एक्सर्टेड, ओके, ये इक्वल हो गया विथ इंटरनल प्रेशर फॉर एग्जांपल. ओके, ये दोनों अगर इक्वल है तो यहाँ पे डेल्टा H के जगह पे आप हीट ट्रांसफर, मतलब ये जो QP जो हमने लिखा था, आइसोबारिक प्रोसेस फॉर ओपन कंटेनर, ओके, ये आप ऐड कर सकते हो ये वाली टर्म, ये QP वाली. ओके, सो दैट्स व्हाई QP इज इक्वल टू, यहाँ पे एंथैल्पी हीट ट्रांसफर हो जाती है इन द सेम एज दिस आइसोबारिक सिस्टम. ओके, so QP is equal to delta U plus P delta V for constant pressure. Okay. तो अब ये दो इक्वेशन देखो, ये वाली QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. ये इक्वेशन देखो और वो इक्वेशन देखो, कोई सिमिलैरिटी दिखाई दे रही क्या? दिखाई दे रही है? यस. तो यहाँ पे आपकी जो राइट हैंड साइड है वो सेम है कि नहीं? ये इक्वेशन और वो इक्वेशन, ये वाली और ये वाली, RHS राइट हैंड साइड जो है वो आपकी सेम है, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी सेम होनी चाहिए. दैट्स व्हाई इन सच अ केस डेल्टा H इज इक्वल टू QP. मतलब एंथैल्पी यहाँ पे क्या होती है? एंथैल्पी इज नथिंग बट दिस QP. ओके, एनर्जी चेंज और heat change in the isobaric process. So last statement, the change in enthalpy of a system is equal to the heat transfer at constant pressure. And again this enthalpy, मतलब this H and Q, they are state functions. देखो एक बार पूरा, ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ. सो अब डेल्टा H और डेल्टा U इसमें रिलेशन है, ये हमने देखा, पर केमिकल रिएक्शन से ये कैसे आप प्रूव कर सकते हो? तो वो हमें देखना है. ओके, चलो, अब आपके पास एक इक्वेशन है, जो मैं बताते हुए वैसे करते हैं, आप ये करोगे, ठीक है? तो आपका एक फाइनल इक्वेशन क्या आया था? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. ओके, ये आपका फाइनल इक्वेशन था. ओके, सो अब यहाँ पे एक फर्स्ट कंडीशन है. ओके, फर्स्ट कंडीशन कि इसमें ऐसे रिएक्शन जिसमें वॉल्यूम चेंज जो है ये एकदम स्मॉल होता है,
ओके, ज्यादा चेंज नहीं होता वॉल्यूम में, एकदम इतना स्मॉल चेंज होता है कि जो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ये एप्लीकेबल कहाँ है? फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड। ये जो वॉल्यूम चेंज जो होता है ये इतना स्मॉल होता है which can be neglected. That's why P delta V becomes 0 and thus delta H is equal to delta U in such cases for solids and liquids. So they do why ऐसा क्यों होता है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को? क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैस जैसी कंडीशन नहीं होती कि प्रेशर चेंज हो गया तो वॉल्यूम चेंज हो गया, ओके, बिकॉज दे डू नॉट चेंज एज प्रेशर चेंजेस, वॉल्यूम डज नॉट चेंज एज प्रेशर चेंजेस, ये इसका रीजन आ गया समझ में। पर गैस तो ऐसा नहीं है, गैस में चेंज होता है, ओके। तो इसका रीजन लिख के रखो कि there is no change in volume as pressure changes. Okay, this is the reason of that. Okay, then second condition gases wali. Okay, so for gases चलो लिखो आपकी इक्वेशन फिर से ये डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ओके। हाँ, अब यहाँ पे ये जो डेल्टा V है इसके जगह पे V2 माइनस V1 लिखो, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्चुअली वॉल्यूम चेंज दिखाई देगा, ओके। मल्टीप्लाई करो P से, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस PV2 माइनस PV1, मल्टीप्लाई करो, ओके। अब किया, हाँ मल्टीप्लाई किया, अब हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, ओके। क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? हाँ, तो फ्रॉम अब यहाँ पे ये जो PV इज इक्वल टू LRT है, इसको ये आइडियल गैस इक्वेशन जो है ये दोनों स्टेट्स पे एप्लीकेबल हो सकती है कि नहीं? तो इसको इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स में अगर आप लिखते हो तो PV1 अगर आपने बोल दिया तो यहाँ पे इनिशियल मोल्स, RT तो कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं कर सकते, और PV2 इज इक्वल टू N2 RT, ऐसा हो सकता है, राइट। सब्स्टिट्यूट करो, ये जो सारा है इसमें सब्स्टिट्यूट करो, PV2 और PV1 के लिए इसको सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन में, क्या आता है? डेल्टा H हाँ क्या आया? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस PV2 के लिए क्या करना है? दिस वन N2 RT माइनस N1 RT आया, कॉमन निकालो, डेल्टा U प्लस N2 माइनस N1 RT, ओके। और इसको भी आप
ऐसा लिख सकते हो, स्मॉल n, RT, और सिर्फ इसको Ng बोलते हैं. एंड व्हाट इज दिस Ng? क्या होता है ये डेल्टा Ng? Yes, number of moles, but difference in number of moles of product and reactant. So that is nothing but difference in number of moles of product and reactant. So यहाँ पे एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी का जो रिलेशन है वो कैसे बताया जा सकता है कि चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स मल्टीप्लाइड बाय R, that is universal gas constant and temperature. राइट, समझ में आ गया? ये भी इक्वेशन ध्यान में रखो. तो जहां कहाँ भी एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी का रिलेशन हो गया हो तो आपको ये तीन फैक्टर्स भी कंसीडर करने पड़ते हैं. ओके, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर. बट ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू गैस. ओके, क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्टली इक्वल होता है. यहाँ पे कुछ ऐसा होता ही नहीं ना, नंबर ऑफ मोल्स एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज वी हैव ओनली आइडियल गैस इक्वेशन. ऐसे आइडियल सॉलिड इक्वेशन पता है क्या आपको, या आइडियल लिक्विड इक्वेशन पता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. दैट्स व्हाई ये इसका फाइनल होता है. ओके, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड. ओके, ये दो यहाँ पे आपको समझने हैं. एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी चेंजेस. आ गया इतना समझ में? ओके, so we will stop here. We will continue from work done in chemical reactions from tomorrow.